Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, grade 9. Hope so you all do exercise 1.1, 1.2 on your notebook. So today I teach you about addition and subtraction of the matrices. Addition and subtraction of the matrices are possible when the order of the given matrices have same. Okay, addition and subtraction of the given matrices are possible when order of the given matrices have same. जब हमारे पास जो मैट्रिसेस गिवन है, 2 या 3 जितने भी गिवन है, उन सब का अगर ऑर्डर सेम होगा तो हम उन मैट्रिसेस को ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। और अगर ऑर्डर ही सेम नहीं है तो हम उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, सो आई स्टार्ट विद एग्जांपल लाइक A matrices 2 1 3 0 0 6 and matrix B have -2 1 3 2 4 3. First of all, we check order of the given matrices. Matrix A have 2 rows, 3 columns. Matrix B also have 2 rows and 3 columns. Its order is 2 cross 3, 2 rows, first write rows, then columns. 2 rows, 3 columns. Matrix B also have 2 rows and 3 columns. Both matrices have same order, so we add and subtract these matrices easily and possible. Addition and subtraction of matrices are possible when both matrices have same order. Now we add and subtract these matrices. First we add, then subtract. ठीक है, add करें तो A plus B is equal to this. First write A matrix 2 1 3 0 0 6. Then write plus sign. Now write matrix B. In addition and subtraction of the matrices, you add first entry with first of this, second entry with second of this, third entry with third of this, fourth entry add with fourth of this, fifth with fifth of this, sixth with sixth of this. ठीक है, देखिए 2 फर्स्ट एंट्री और उसकी फर्स्ट एंट्री की है मैट्रिक्स बी की -2, 3 + 3 0 + 4. फर्स्ट एंट्री में फर्स्ट ऐड, सेकंड एंट्री में सेकंड, थर्ड में थर्ड, इसी तरह फोर्थ एंट्री में फोर्थ ऐड करेंगे। 1 + 1 0 + 2 and 6 + 3 which is equal to 2 plus minus 2 minus 2 0, 1 plus 1 2, 3 plus 3 6, 0 plus 2 2, 0 plus 4 4, 6 plus 3 9. समझ आ गया आपको? ये आपके पास क्या था, एडिशन ऑफ द मैट्रिसेस। अब मैं इन्हीं मैट्रिसेस को लेके सब्ट्रैक्शन ऑफ द मैट्रिसेस करती हूँ। ऑर्डर दोनों का सेम है तो सब्ट्रैक्शन आल्सो पॉसिबल। Now we subtract these two matrices. First write A matrix 2 1 3 0 0 6, minus sign. Now write matrix B -2 1 3 2 4 3. Now we subtract these matrices. 2 साइन कौन सा आएगा, माइनस, और ये क्या है -2, 3 -3 0 माइनस साइन 4, वो सब्ट्रैक्ट तो माइनस साइन। ठीक है, in subtraction also we subtract first entry with first, second with second, third with third, fourth with fourth, fifth with fifth, sixth with sixth. 1 minus 1
0 minus 2, 6 minus 3. Now we subtract this and trace. Minus minus plus 2 plus 2 4, 1 minus 1 0, 3 minus 3 0, 0 minus 2 minus 2. 0 में कुछ भी ऐड कर लो सब्ट्रैक्ट कर लो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो नंबर एज इट इज आ जाता है. 0 minus 4 minus 4, 6 में 3 के 3. ठीक है, ये एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस. Addition and subtraction of matrices are possible when the given matrices have same order. Otherwise, it is not possible. Now, multiplication of the matrix by real number. Multiplication of matrix by real number. Real number में आपके पास नेगेटिव नंबर भी हो सकता है, कोई कांस्टेंट वैल्यूज भी हो सकती हैं, पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती है. ठीक है, रियल नंबर में आपके पास नेगेटिव नंबर भी हो सकता है और रियल नंबर में आपके पास नेगेटिव नंबर भी हो सकता है और पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है. और कोई भी आपके पास मैट्रिक्स गिवन होगा और आपने उस रियल नंबर को उस मैट्रिक्स से सिंपल क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है. और मल्टीप्लाई आपने हर एंट्री को सिंपल उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देना. एग्जाम्पल देखिए ना, ये है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन of a matrix by a real number. Let हम मैट्रिक्स ले लेते हैं. The example which is given in your book, -1 -1 3 4 0 2. ठीक है, अब हमने इसको मल्टीप्लाई करने को कोई भी एक रियल नंबर ले लें. रियल नंबर आप पॉजिटिव भी ले सकती हैं और नेगेटिव भी ले सकते हैं. हम किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. लेट्स से हम कहते हैं वो नंबर हमारा रियल नंबर हमारे पास क्या है, -2. -2 इज अ रियल नंबर एंड वी मल्टीप्लाई विद दिस मैट्रिक्स. आई एम मेकिंग -2 ऑफ a, मतलब -2 इज अ रियल नंबर. अब हम उसको मल्टीप्लाई करें किससे, मैट्रिक्स a से. -2 और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, मैट्रिक्स a. Simple. Multiply with each entry with -2. देखिए -2 से मल्टीप्लाई होगा -2 जब इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2. जब इससे मल्टीप्लाई होगा 2 4 जा 8 और इसका प्लस का साइन है, प्लस माइनस माइनस. ठीक है, प्लस माइनस माइनस 4 2 4 माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2. अब इसका माइनस है, इसका कोई साइन होगा, प्लस का साइन हुआ, प्लस माइनस माइनस 2 0 जा 0. अब 0 के साथ प्लस लगाओ माइनस लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, बेशक आप इसका बेशक नेगेटिव साइन ना लगाओ. 2 से 0 से जब कोई नंबर मल्टीप्लाई हो तो वो नंबर क्या हो जाता है, 0. जब ऐड सब्ट्रैक्ट हो तो नंबर खुद ही आ जाता है. अब इससे मल्टीप्लाई करें माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2 प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6 माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4. दिस इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय अ रियल नंबर. ठीक है, नाउ commutative law and associative law with respect to addition. Commutative law and associative law with respect to addition. In commutative law we have two matrices, we have add and subtract. And in associative law we have three matrices, and if we add so we add, if we subtract these matrices so we subtract. अच्छा, commutative law under addition. Commutative law under addition, what are these? A plus B is equal to B plus C. Mean if you add A in B equal to if we add B in A, both have same result. So we consider matrices. Example हम ले लेते हैं क्योंकि
बुक में गिवन है वही ले लेते हैं। 2 मैट्रिक्स ए 2 5 2 3 6 1 0 1 3 and matrix B which is 3 minus 1 4 minus 2 4 2 5 1 minus 4. Now we add this is gone. First we solve left hand side, then right hand side. Take left hand side which is a plus b. Okay. First you write matrix A 2 5 2 3 6 1 0 1 3. ठीक है, उसके बाद ये कौन सा साइन है, प्लस का साइन। फिर कौन सा मैट्रिक्स लिखेंगे, मैट्रिक्स बी, मैट्रिक्स बी लिखे 3 minus 1 4 minus 2 4 2 5 1 and minus 4. A plus B is equal to, अब इनको आप ऐड कर लें। चलिए फर्स्ट को फर्स्ट में ऐड करना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हमने एक एग्जांपल की थी। जिन एंट्री के साथ माइनस का साइन होगा तो आप लोग माइनस का साइन ही लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि देखिए 3 प्लस माइनस माइनस और 4 आ जाएगा। इस तरह से तो नेगेटिव साइन तो देखिए ये वाला इस फर्स्ट इसके साथ है 5 5 और इससे क्या है प्लस माइनस माइनस 1, इनके साथ नेगेटिव साइन है तो प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, तो इससे माइनस साइन आ जाएगा। नाउ a प्लस b इज इक्वल टू, अब इनको सॉल्व कर 3 प्लस 2 5 5 minus 1 4 4 plus 2 6 3 में से 2 के 1 6 और 4 10 2 और 1 3 5 2 minus 1. Okay, now we solve right hand side which is b plus a. Okay, right hand side, take right hand side which is b plus a. Now first you write matrix b, first write matrix b 3 minus 1 4 minus 2 4 2 5 1 minus 4 plus sign, then you write matrix a 2 5 2 3 6 1 0 1 3. b plus a is equal to this 3 plus 2 minus 1 plus 5 4 plus 2 minus 2 plus 3 plus 5 plus 0 4 plus 6 1 plus 1 2 plus 1 minus 4 plus 3. and हर एंट्री को उसकी एंट्री में ऐड कर दो। now you write answer 5 4 6 1 10 3 5 2 minus 1. देखिए b plus a and this is a plus b, both have same matrices, so we write this, hence prove a plus b is equal to b plus a. Commutative law with addition, under addition solved in these matrices. Okay, are you understand? Now associative law, associative law under addition. Now you have associative law under addition. In associative law we have three matrices. We have three matrices, and these three matrices also have same order. Also have same order, and we write this in general form. The associative law is a plus b plus c is equal to a plus b plus c. ठीक है, मतलब अगर आप पहले a plus b को ऐड करें, देन आप उसमें मैट्रिक्स c ऐड करें, वो इक्वल होगा अगर आप लोग b plus c को पहले ऐड कर लें और देन उसमें
ए ऐड कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जैसे एग्जांपल गिवन है बुक में, एग्जांपल बल्कि एसोसिएटिव के लिए मैं आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर देती हूँ। एक्सरसाइज में तो एसोसिएटिव का इतना नहीं, बस सिंपल इसमें एडिशन वाला हो रही है, तो हम एग्जांपल ही करेंगे। इसमें तो सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो रही है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, तो हम इसको सिंपल ये वाली एग्जांपल बुक में ले, बुक में जो एग्जांपल एसोसिएटिव की गिवन है उसी से आपको बता देती हूँ। 3 6 1 0 1 3। फर्स्ट ऑफ ऑल आई राइट मैट्रिसेस। All three matrices have same order. 3 rows, 3 columns, all have. So its addition is possible. First, left hand side, similarly as previous. बस थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे ये है कि इसमें जो 3 मैट्रिसेस होंगे वहाँ पे कम्यूटेटिव में 2 मैट्रिसेस थे। और बस एडिशन और सब्ट्रैक्शन ये आपने ध्यान रखना है, सबसे पहले आपने चेक करना है कि ऑर्डर सेम है। अगर ऑर्डर सेम है तो एडिशन पॉसिबल, अदरवाइज एडिशन सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। और ऑर्डर सेम है, ऑर्डर ही सेम नहीं है तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, अब सबसे पहले आपने ब्रैकेट सॉल्व करनी है, a प्लस बी करना है, फिर c ऐड करना है। तो सबसे पहले मैं क्या सॉल्व करूंगी, a प्लस बी। वी राइट फर्स्ट मैट्रिक्स a 2 5 2 3 6 1 0 1 3 प्लस साइन, मैट्रिक्स b लिखें, -1 4 -2 4 2 5 1 -4, ठीक है। a प्लस बी लिखें, सिंपल इसको ऐड करें, मैं इसको डायरेक्ट ऐड कर देती हूँ। 2 + 3 5 3 - 2 1 0 + 5 5 5 1 क्योंकि -9 है, 5 से 1 4 हो जाएगा, 6 से 4 10 1 और 1 2 4 6 3 और ये -1, ठीक है। मैंने इसको डायरेक्ट ऐड कर दिया। अब देखिए हम पहले ब्रैकेट सॉल्व करने थे प्लस बी, वो मैंने कर लिया। अब उसमें फर्दर हमें क्या ऐड करना है, c। अब देखिए आप लोग इस तरह लिखेंगे, जैसे मैं लिख रही हूँ आपने ऐसे स्टेप करना है। a प्लस बी आ गया, उसमें अब हमने क्या ऐड करना है, c। पहले आप कौन सा मैट्रिक्स लिखेंगे, a प्लस बी, और ये a प्लस बी वाला मैट्रिक्स आपके पास है। 5 4 6 1 10 3 5 2 -1, ठीक है। अब इसमें हमने a प्लस बी में कौन सा मैट्रिक्स ऐड करना है, c मैट्रिक्स, प्लस साइन डालें। c मैट्रिक्स कौन सा है, 3 1 है। 1 -2 1 2 0 2 3 4 0। अब इसको मैं आंसर यहाँ पे लिखती हूँ, इसको सॉल्व करके। अब मैं इसको ऐड करूँगी, a प्लस बी प्लस सी व्हिच इज इक्वल टू, अब ऐड करें, ऐड करके मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ आंसर। 5 + 1 6 1 + 2 3 5 + 3 8 4 - 2 2 10 + 0 10 2 + 4 6 + 1 7 3 + 2 5 एंड -1 0। लेफ्ट हैंड साइड मैंने कर दी। अब राइट हैंड साइड डू योरसेल्फ एंड चेक both are equal answer, both give equal answer, ठीक है। if both give equal answer then associative law under addition hold, okay। right hand side do yourself, okay। next है additive identity of the matrix। next है हमारे पास additive identity ऑफ मैट्रिक्स। अगर हम मैट्रिक्स के नाम ऐसे बात करें, जनरल एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी वो होती है कि हम किसी नंबर में एक ऐसा नंबर ऐड करें कि वो नंबर इटसेल्फ खुद ही आ जाए। तो वो नंबर हमारे पास सिर्फ 0 है कि हम अगर 0 को किसी नंबर्स में ऐड करते हैं तो वो नंबर खुद आ जाते हैं, तो ये एडिटिव आइडेंटिटी होती है। लेकिन अब हम मैट्रिक्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हम क्या पढ़ रहे हैं, हम क्या कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स में भी एडिटिव आइडेंटिटी का वही कॉन्सेप्ट है कि आपने ऐसे मैट्रिक्स को गिवन मैट्रिक्स में ऐड करना होता है कि वो मैट्रिक्स खुद ही आ जाए। तो मैट्रिक्स हम कौन सा लेंगे, नल मैट्रिक्स लेंगे। नल मैट्रिक्स कौन सा होता है, जिसमें सब एंट्रीज क्या होती हैं, 0 होती हैं, ठीक है।
एडिटिव आइडेंटिटी में क्या होता है कि आपने वो नंबर ऐड करना होता है कि नंबर खुद ही आ जाए। तो वो एक सिर्फ नंबर 0 है, जब हम उसको किसी नंबर में ऐड करते हैं तो वो नंबर खुद ही आ जाता है। तो ये एग्जांपल कोई भी ले लें, नेक्स्ट से मैं एग्जांपल ले लेती हूँ। ए अगर हमारे पास है 1 2 3 4, तो हम एडिटिव आइडेंटिटी बनानी है, तो इसके लिए मुझे कौन सा एक नल मैट्रिक्स लेना होगा, उसको मैं समझे गए। और नल मैट्रिक्स में चलो मैं ओ से डिनोट कर लेती हूँ। इसमें हर एंट्री हमारे पास क्या होगी, 0 होगी। अब एडिटिव आइडेंटिटी में क्या होता है कि आपने इसको ऐड करना है, तो हमारे पास क्या है वो जो मैट्रिक्स गिवन है वो मैट्रिक्स खुद आ जाए। अब देखिए, अब जब इसको इसमें ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली ए खुद आ जाए। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स का था। अब मैं आपको बताती हूँ एडिटिव इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। नाउ I tell you about additive inverse of the matrix. Additive inverse of the matrix. In additive inverse, if we simple consider a number 1, we find its additive inverse by first we multiply with negative sign and then we add, and which give the result 0, then it is said to be a additive inverse. Additive inverse वो होता है कि अगर हम किसी नंबर में वो नंबर ऐड करें, ऐसा नंबर ऐड करें जो हमें रिजल्ट क्या दे, 0। एडिटिव इनवर्स में क्या होता है कि हम एक ऐसा नंबर गिवन नंबर्स में ऐड करते हैं जो हमें आंसर क्या दे, 0 दे। लेकिन जब हम मैट्रिक्स की बात करें तो मैट्रिक्स में भी यही होगा कि हम एक मैट्रिक्स में ऐसा मैट्रिक्स ऐड करें जो हमें रिजल्ट क्या दे, नल मैट्रिक्स दे। सपोज अब हमारे पास मैट्रिक्स ए ले लेती हूँ मैं, सिंपल 1 2 3 4। अब मैंने इसमें ऐसा मैट्रिक्स ऐड करना है कि हमें ये नल मैट्रिक्स आंसर दे, तो ये एडिटिव इनवर्स होगा। तो हम सिंपल क्या करते हैं, जो नंबर हो या मैट्रिक्स हो तो हमको उसको सिंपल मल्टीप्लाई विद नेगेटिव साइन करते हैं, हर नंबर को मल्टीप्लाई विद नेगेटिव साइन करते हैं, फिर हम दोनों मैट्रिक्सेस को ऐड करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाता है, नल मैट्रिक्स आता है। वो तो हमारे पास क्या हो जाता है, एडिटिव इनवर्स। अब देखिए हम इन दोनों को करेंगे। अब पहले ए मैट्रिक्स लिखूंगी, ऐड करते हैं, ठीक है, दोनों फर्स्ट मैट्रिक्स प्लस करते हैं ये वाला मैट्रिक्स, ठीक है, नेगेटिव से जो मल्टीप्लाई करते प्लस का साइन आएगा। अब कौन सा मैट्रिक्स लिखना है, माइनस ए वाला, नेगेटिव वाला। अब हम इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 1 - 1 0, 2 - 2 0, 3 - 3 0, 4 - 4 0, which give null matrix, so is additive. In additive inverse में हमने क्या करना होता है, जो मैट्रिक्स हमें गिवन होता है हम इसको सिंपल नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर दोनों मैट्रिक्स को ऐड करते हैं और रिजल्ट अगर हमें नल मैट्रिक्स दिए तो वो एडिटिव इनवर्स होगा। ठीक है, now exercise 1.3 in question number 1 use simple show that which of the following matrices are comfortable for addition। हमने बताना है कि कौन से मैट्रिसेस कंफर्टेबल है एडिशन के लिए। कंफर्टेबल कब होते हैं मैट्रिसेस, जब उनका ऑर्डर क्या हो, सेम हो। अब आप इन मैट्रिसेस में आप लोग खुद चेक करना है कि जिनके ऑर्डर सेम होंगे वो कंफर्टेबल होंगे और जिनके ऑर्डर सेम नहीं होंगे वो कंफर्टेबल नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, फाइंड एडिटिव इनवर्स। अब अपने इसमें क्या फाइंड करना है, एडिटिव इनवर्स। इसी का मैं इधर ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर एफ जैसे है, देखिए √3 - 1 और 1 √2। एडिटिव इनवर्स के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे इसको। ये इसका माइनस पहले है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, -1 - √2। अब जब आप इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करेंगे तो हमारे पास नल मैट्रिक्स आ जाएगा। और आगे सारे बस सिंपल आपने ऐड और सब्ट्रैक्ट वाले क्वेश्चन हैं। और जो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, जब ब्रैकेट, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 देखें, ये फर्स्ट पार्ट जो है हमारे पास, पहले ये ब्रैकेट है 1 0 0 1 प्लस 0 3 2 0 प्लस 1 1 1 0। अब देखिए पहले ये वाली ब्रैकेट है,
तो सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट को, इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, देन हम इसमें ये ऐड करेंगे। सिंपल ऐड आपने वैसे ही करना है, इन दोनों को ऐड कर लें। 1 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 2 2, 0 प्लस 3 3, 1 प्लस 0 1। आपने ऐड इसमें वो लास्ट मैट्रिक्स करना है, ठीक है। अब इसमें ऐड 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, 1 प्लस 0। सिंपल इसे आपने ऐड और सब्ट्रैक्ट करने क्वेश्चन। एंड क्वेश्चन नंबर 6 में भी सिंपल, पहले आपने ए मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई करना है और बी मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करना है और फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 7 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 2 minus 3 4a plus 3 1 8 b minus 4 is equal to 7 18 10 1. We find the value of a and b. We multiply this matrix with 2, this matrix with 3 and then add. ठीक है, we multiply this matrix with 2 and this matrix with 3 and then we add this matrix. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई, हर एंट्रीज को मल्टीप्लाई कर लेंगे इसे। 2 are 4, 2 4s are 8, minus 2 3s are 6, 2a। अब 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 1s are 3, 3 8s are 24, 3b minus 12 which is equal to 7 18 10 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों मैट्रिसेस को ऐड करेंगे। 4 प्लस 3 7। अब देखिए इसके साथ 8 है और ये हमारे पास क्या है, 3 भी है। अब इसके साथ तो b है ही, तो ये ऐड हो ही नहीं सकते, हम इनको सिंपल से लिख देंगे 8 प्लस 3b। ठीक है, अब देखिए माइनस 6 प्लस 24, 24 में से 6 माइनस करें, अब देखिए 2 और 12 है, ये दोनों भी आपस में ऐड कर सकते हैं, इसको भी हम ऐसे लिख देंगे 2a प्लस माइनस माइनस 12। इस क्वेश्चन में एक्चुअली आपने फाइंड क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। अब देखिए अब ये भी कांस्टेंट नंबर है, ये भी कांस्टेंट नंबर है और ये दोनों भी कांस्टेंट सेम है, इसको तो कंपेयर की जरूरत ही नहीं है। हम इसको इस टर्म से कंपेयर करेंगे, फोर्थ को फोर्थ वाले से कंपेयर करेंगे और वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। देखिए 8 प्लस 3b इज इक्वल टू 10, इसको नाम दे दें इक्वेशन 1 का। ठीक है, नेक्स्ट 2a माइनस 12 इज इक्वल टू 4 को 4 से कंपेयर करें इक्वल टू 1 और इसको नाम दे दें इक्वेशन 2 का। अब लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 3b इज इक्वल टू, इधर 8 प्लस हो रहा है तो क्या क्या हो जाएगा माइनस 10 माइनस 8, 3b इज इक्वल टू 2। यहां से अब लिखिए b इज इक्वल टू 2/3। ठीक है, अब लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 से देखें 2a माइनस 12 इज इक्वल टू 1। ये माइनस 12 जब राइट हैंड साइड पे जाएगी तो माइनस तो राइट हैंड साइड पे जाके हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पास 13 इज इक्वल टू 2a, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाके हो जाएगा। समझ आया आपको? सिंपल मैंने पहले इनको इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको 3 से किया, दोनों को ऐड कर दिया। अब यहाँ पे 8 था, यहाँ पे 3 भी, तो ऐड नहीं हो सकती, इनको हमने एज इट इज लिखा 2a प्लस माइनस माइनस 12। ठीक है, अब ये 7 18, ये 7 18 तो सेम है, हमने सिंपल इसमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैंने सेकंड को सेकंड से कंपेयर कर दिया, फोर्थ को फोर्थ से कंपेयर किया, इसलिए क्वेश्चन 1 और 2 का नाम दिया, वहां से हमने सिंपल a और b की वैल्यू फाइंड करनी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, उसमें हमें सिमेट्री को स्क्यू सिमेट्री शो करना है, और इसमें आपको मैं एक क्वेश्चन कर दूंगी, बाकी आप लोग खुद ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का 6 पार्ट देख लेते हैं। A मैट्रिक्स हमारे पास है 1 0 2 1 एंड B मैट्रिक्स है 1 2 1 0। 6 पार्ट में हमारे पास है B माइनस B ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक।
स्क्यू सिमेट्रिक में हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास लेट से जो मैट्रिक्स अगर हमारे पास बी गिवन है तो हम क्या कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तब होता है जब बी ट्रांसपोज इक्वल आ जाए माइनस ऑफ गिवन मैट्रिक्स, ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तो हियर दिस इज अ फुल मैट्रिक्स, दिस इज अ फुल मैट्रिक्स। हमने इसको स्क्यू सिमेट्रिक शो करना है, हमने शो करेंगे कि दिस मैट्रिक्स फुल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इक्वल होगा माइनस ऑफ गिवन मैट्रिक्स। अब हमारे पास ये फुल एक मैट्रिक्स है, हमने शो करना है कि स्क्यू सिमेट्रिक है। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है कि जो गिवन मैट्रिक्स होता है उसका ट्रांसपोज इक्वल होता है माइनस ऑफ गिवन मैट्रिक्स। ये पूरा एक मैट्रिक्स है, ठीक है, बी माइनस बी ट्रांसपोज फुल ऑफ वन मैट्रिक्स, शो वन मैट्रिक्स, ठीक है। इसका फुल का ट्रांसपोज किससे इक्वल होगा माइनस ऑफ गिवन मैट्रिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सॉल्व दिस ब्रैकेट, फर्स्ट वी टेक ट्रांसपोज देन सब्ट्रैक्ट फ्रॉम बी। बी मैट्रिक्स गिवन है हमारे पास 1 2 1 0। फर्स्ट टेक इट्स ट्रांसपोज, ट्रांसपोज लेंगे तो ये रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी, सेकंड रो आल्सो कन्वर्ट इनटू कॉलम। ट्रांसपोज भी ले लिए, अब ब्रैकेट के पहले अंदर वाली चीज सॉल्व करेंगे। बी माइनस बी ट्रांसपोज लेंगे पहले 1 2 1 0 माइनस बी ट्रांसपोज ये, ठीक है। माइनस करें इसको, 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 माइनस 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 1, 0 माइनस 0 0। अब ब्रैकेट के इंटरनल पार्ट में सॉल्व कर लिया, हमें लेना क्या उसका ट्रांसपोज। अब हम क्या लेंगे इसका ट्रांसपोज, ट्रांसपोज लेंगे इस मैट्रिक्स का, तो ये रो किस में कन्वर्ट हो जाएगी कॉलम, इस तरह ये रो भी कन्वर्ट हो जाएगी कॉलम। ये मैंने कौन सी साइड की है, लेफ्ट हैंड साइड की, ये था। इसी तरह आप लोग क्या करेंगे राइट हैंड साइड में आपने सिंपल बी में से बी ट्रांसपोज को माइनस करना है और नेगेटिव साइन कॉमन ले लेंगे तो वो इक्वल हो जाएगी। एंड बाकी सारे क्वेश्चन अब आप लोग खुद ट्राई करें और इंशाल्लाह चेक करते हैं।